So I was sleeping and I just got up with some reporter's call. And usually I don't take unknown numbers, but then I picked up the call, and there was this reporter, and she said, "Ankita, Sushant has committed suicide," and I was finished. I mean, it was something that you don't expect something like this, and I'm so sorry. I get emotional sometimes because I think this is the first time I'm talking to somebody about Sushant, and it's very, very difficult for me, for all of us, I guess. And so then I got to know, मैं बाहर आई and my mom was there, and it was everywhere, सारे news channels पे सिर्फ यही था that Sushant is no more, he has committed suicide. That was the headline, and I didn't know what to do. I didn't know, so I was just there. And next day there was this funeral, and I could not make it because somewhere I knew that if I see Sushant somewhere, like that, in that position, that stage, I have my whole life to live, and I will never be able to forget that face. I will never be able to forget that face. Isliye I decided that I cannot go to the funeral. And apart from that, I wanted to meet his family. I wanted to make sure that they are okay, because जो जाना था वो चला गया, लेकिन पापा थे, उसकी बहनें थी, and that was my duty to go and meet them. And I met them, and they were in a bad condition, sir, very bad condition. And that's it. That's how I got to know. So first of all, जब ये news आई, it was everywhere that he committed suicide, and बहुत time लगा इस चीज़ को accept करने के लिए. But I want to tell everyone right now, Sushant was not a kind of a guy who will be in a depression, जिसे किसी चीज़ का दुख हो और वो सुसाइड कर ले. He was not that personality. He was a happy-go-lucky guy. इससे बुरी सिचुएशंस आई थिंक मैंने और सुशांत ने अपने लाइफ में फेस की होंगी. अगर मुझे नहीं पता वो किस पोजीशन में होगा या क्या कर रहा होगा, बट आफ्टर अ सर्टन टाइम, जब टाइम चला गया, तब आई स्टार्टेड गेटिंग एंड आई स्टार्टेड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सब कुछ 15 मिनट्स में कैसे सुसाइड किसी को बोल दिया जाता है. आपने सडनली बोल दिया कि ये सुसाइड है, पता चल गया कि सुसाइड है, फोटोज लीक हो गई, वीडियो लीक हो गया, सब कुछ. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट सर जितना मैं सुशांत को जानती हूँ, ही इज नॉट अ डिप्रेस्ड गाय. सर I have not seen a person like Sushant. मैंने अपनी लाइफ में ऐसा लड़का नहीं देखा है who writes his own dreams, sir. उसकी एक डायरी थी, वो बहुत लिखता था. I remember this, जब हम सब पहले रिलेशनशिप में आए थे, उसने अपनी एक डायरी लिखी थी सर. उसके 5 साल के प्लान उसमें उसने लिखे हुए थे, जिसमें उसको 5 साल बाद क्या करना है, वो क्या दिखेगा, ये सब था. एंड सर एग्जैक्टली आफ्टर 5 years वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी थी. एग्जैक्टली आफ्टर 5 years आई वाज सी कि सुशांत ने वो सारी चीज़ें, अपने सपने पूरे किए. और जब ये चीज़ बोली जाती है वो डिप्रेस था, वो डिप्रेशन में था, such a wrong word to use it, sir. He can't be depressed. He can be upset about few things. He can be, depression is a very big word to use for somebody, sir, until you don't know the reasons, But Sushant was never a kind of a guy जिसको depression हो. Anxiety होती है, हम सबको होती है, उसको भी होती थी, sir. But depression एक ऐसी चीज़ है, he has been called bipolar. It's a big thing to call somebody. I mean, मेरे साथ जो सुशांत था, मैं उस सुशांत में मैं उस चीज़ को डंके की चोट पे बोल सकती हूँ सर कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था. He can't be in depression, and I don't want people to remember him as a depressed guy. I want people to remember him as a hero, जो एक छोटे शहर से आया, जिसने अपना नाम कमाया, अपने दम पर जिंदगी जी, अपने दम पर बना. For so many of us, he was an inspiration. He was an inspiration, and he will be an inspiration for all of us. He inspired me in many ways. He taught me acting. He was a talented actor, and I know that. And it's a very sad thing जब लोग एक कहानी बना लेते हैं और अपने तरीके से उसको पोर्ट्रे करते हैं. Do you even know who was Sushant?
किसी को पता भी है सुशांत क्या था। अपने अपने पोर्ट्रेल से सब अपना अपना लिख के जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी टू से दिस सर, बट इट हर्ट्स एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट सुशांत एंड आई वांट टू से इट। आई वांट टू टेल पीपल ही वाज नॉट अ डिप्रेस्ड मैन, ही वाज अ पैशनेट गाय, ही वाज अ चाइल्ड, ही वाज लाइक अ चाइल्ड जो खाना देखकर खुश होता था, जिसको खुशी होती थी गुलाब जामुन देख के, जो चॉकलेट्स खाता था उसे खुशी, उसकी छोटी छोटी खुशियां। ही वांटेड टू फार्मिंग, यस ही वांटेड टू डू अ फार्मिंग एंड आई नो दिस। वो पहले से बोलता था अगर कुछ नहीं हुआ ना तो मैं अपनी शॉर्ट फिल्म बना लूंगा पर मैं खुश रहूंगा। He was never, I am sure that you know, मुझे नहीं पता सर कि क्या सिचुएशन थी क्या, बट मैं इतना जरूर अश्योर करना चाहती हूँ आज मैं आपके शो पर, आई वांट टू टेल पीपल ही वाज नॉट अ डिप्रेस्ड गाय बिकॉज सर आई हैव सीन दिस मैन वर्किंग सो हार्ड फॉर हिमसेल्फ। सर एक लड़का है जिसने पवित्र रिश्ता चूज किया। पहले वो थिएटर्स करता था, उसने थिएटर में प्ले करना शुरू किया, उसके बाद उसने सोचा मैं कुछ और करता हूं, उसने सीरियल लिया, फिर उसके बाद उसको लगा मुझे कुछ और करना है। उस सीरियल्स में सर ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स। उसने सर बहुत पीक पर आकर पवित्र रिश्ता छोड़ा था जब वो टेलीविजन का सबसे बड़ा हीरो था। एंड टेलीविजन इज अ बिग 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 मार्केट सर, टेलीविजन इज ह्यूज because I am from television and that time पवित्र रिश्ता was in a peak sir। मतलब उस टाइम सुशांत ने आके टेलीविजन छोड़ा था क्योंकि उसको कुछ और करना था। He was never stuck in one thing, he was very creative, he said मुझे कुछ और करना है। He tried films, he got into films, उसने फिल्म्स की। उसके बाद आज लोग उसको बोल रहे हैं वो डिप्रेशन में था। मैं ये मान ही नहीं सकती क्योंकि जो लड़का जिसको पता है उसे क्या करना है, जो उसे तभी जब वो फिल्म्स में भी उसने 3 साल वेट किया है सर। मैंने उसको बोला तू छोड़ पवित्र छोड़, तुझे जो करना है वो कर, बिकॉज जब एक पैशनेट दिमाग होता है ना, व्हेन यू हैव सो मच ऑफ क्रिएटिविटी इन योर हेड एंड you don't know what to do it, how to use it, you have to wait for a certain period, you have to give time to yourself। मैंने बोला सुशांत को just give time to yourself and he sir waited for that one break for himself। he waited for 3 years, he was sitting at home, he was waiting for that one break। everybody don't have that patience sir, but he had that patience, he waited for that thing। अब बहुत छोटी चीज थी सुशांत के लिए, पैशन बहुत बड़ा था। वो हमेशा मुझे बोलता था कि अगर मैं सब खत्म भी हो जाए ना तो मैं अपना एम्पायर फिर से खड़ा कर लूंगा और नहीं कुछ मिलाना तो मैं अपने दम पर जिंदगी जीऊंगा। सब मनी वॉज नेवर एन एजेंडा फॉर हिम, हिज क्रिएटिविटी, हिज पैशन टूवर्ड्स फिल्म्स, हिज पैशन टूवर्ड्स लाइफ, आई वुड रादर से। फिल्म नहीं, वो जो करता था ना वो शिद्दत से करता था सर, बहुत शिद्दत से करता था लड़का। मैंने उसको देखा है सर, हर एक छोटी से छोटी चीज में डांस करता था ना वो खुशी से करता था। वो बैकग्राउंड डांसर रहा है सर, वो शामक डावर के ग्रुप में बैकग्राउंड डांसर था। वो बैकग्राउंड डांसर से उसकी जर्नी जो शुरू हुई है वो दिल बेचारा पर खत्म हुई है। वो कभी वो सर मुझे अभी तक याद है सुशांत मुझे हमेशा एक चीज बोलता था, सक्सेस और फेलियर के बीच में एक लाइन होती है जो वो हमेशा बोलता था जो धोनी फॉलो करते हैं। यू नो जब कुछ ज्यादा अच्छा होता है तो भी वो सटल रहता है, जब कुछ ज्यादा खराब होता है तो भी वो सटल रहता है। एंड सुशांत बोलता था मैं ऐसे होना चाहता हूं बिकॉज ही वॉज लाइक दैट, वेरी बैलेंस्ड। ना उसको सक्सेस कभी अफेक्ट की ना उसको डाउनफॉल कभी अफेक्ट किया। बोला कभी अफेक्ट भी होगा ना तो आई बाउंस बैक, क्योंकि ये जो खुशियां हैं सर, ये जो थोड़ी सी खुशियां हैं ये उसी टाइम की होती है, वो पल भर की खुशियां होती है। ये सुशांत मानता था सर, इसीलिए वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढता था। वो उन लड़कों को बच्चों को पढ़ाता था जिसमें उसको खुशी मिलती थी। उसने इतने सारे बच्चों को एजुकेशन दिया सर, उसको खुशी जहां मिलती थी वो स्टार्स को गेज करता, उसको वो चीजें खुशी देती थी सर। अब वो उसकी रियल खुशी थी, उसके लिए ये उसका पैशन था एंड ही वर्क टुवर्ड्स दैट पैशन, बट ही कैन नॉट डाई फॉर दिस, he cannot die for this। So I remember रानी दी जो सबसे बड़ी बहन है सुशांत की, she called me, I called her ऐसे ही normally, I used to talk to them because I have been I really have a very good bond with all of the sisters and daddy, so one day I think, I don't remember she called me or I called her, but I was just talking to her and she started crying and she said कि मैं सुशांत को लेने गई थी, उसको डेंगू हुआ था शायद, और मैं सुशांत को लेने गई थी और वो आना चाहता था and suddenly something happened and he said I'm not coming। She said I felt some kind of a pressure on him because सुशांत रानी दी की बात कभी टाल नहीं सकता था। After सुशांत's mother, रानी दी was somebody जिनकी बात
हमने घर पे कभी नहीं टाली क्योंकि वो सबसे बड़ी बहन थी सुशांत की। एंड आई वाज शॉक्ड टू नो दिस बिकॉज सर जब तक मैं साथ में थी तब तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि रानी दी की बात सुशांत ने कभी भी टाली हो। ये कब की बात है? When was this? फैक्ट, क्योंकि आफ्टर मदर शी वो ये सर आई थिंक दिस इज 2019 नवंबर। ओके। When I spoke to her and she said कि अंकिता मेरा भाई खो रहा है, मेरा भाई खो रहा है। And because मैं बाहर थी सर सुशांत के लाइफ में, I was not there, so I just consoled. I told her कि रानी दी हो जाएगा ठीक, give him some time, give him some time. I tried to tell her that only, and she was like हो जाएगा ना। मैंने बोला yes रानी दी, and she's a strong believer of God. मैंने बोला बस प्रेयर करो सब हो जाएगा। ने क्यों कहा था? What was she talking about? क्या किस बात की चिंता थी? What were they worried about? Like what was happening? Why did they feel they are losing Sushant? Why did they have this feeling? I don't know because sir वो आया ही नहीं, वो पहले हाँ बोल रहा था and then suddenly somebody came to call him. He went and he came back. He changed his decision. So Rani Di was worried कि is there anyone who is influencing him or because Sushant was not somebody who will listen to anybody sir. Sushant कभी किसी की नहीं सुनता था, उसने अपने किए, उसने अपने decisions खुद लिए हैं सर। और जहाँ तक मेरी बात हुई है अभी भी जो मैं कनेक्ट सर, एक साल में उनकी बहुत अलग होते गए थे सुशांत अपने बहनों से, ये मुझे पता चला, मुझे रानी दी से ये पता चला। It is the same time that it is the same time that Riya Chakrabarti came into his life, which is the second part of 2019 onwards, around May 2019. I think so. I don't know Riya इनकी लाइफ में कब आई सुशांत की, मुझे नहीं पता ये कब आई है, लेकिन I think it's like 1 year of a relationship with Sushant Riya ka. So I don't know, but yes, this was the phase where he was not with the family. He was not with the family. तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि सुशांत ऐसे कैसे कर सकता है। Why did you not call him? You were in a long relationship with him. क्योंकि of course वो No sir, I didn't have Sushant's number from last 4 years. I was not in connection. I was not in touch with Sushant. And people are saying there is this thing where it's out everywhere. People are saying that I have given a statement to police that Sushant and me shared a chat and whatever. It's a lie, sir. It's absolutely a lie because Sushant का number मेरे पास कभी नहीं था. It's been 4 years. I have not seen this person. I didn't talk to him for 4 years. एंड मैं सिर्फ रानी दी के टच में थी, बहनों के पापा के टच में थी, बट सुशांत सर मुझे पता था कि we can't talk to each other that way and I never because जो चीज चली गई है वो चली गई है सर। वो खुश था अपनी जिंदगी में जहां से मैं देख सकती थी and I am also happy in my life, so why to, but when I got to know about these things I told Rani Di because वही मैं कर सकती थी सर, उतना ही मैं कर सकती थी and I convinced her that don't worry, he'll come back, don't worry, he'll be fine। मेरे पास कभी सुशांत का नंबर नहीं था, ना मैंने कभी किसी से मांगा सर, क्योंकि इट्स ओके। बट अभी जो रिसेंटली मुझे पता चला है उसके नंबर्स चेंज हो रहे थे, क्योंकि मेरी श्वेता दी जो यूएस की उनकी सिस्टर है, मेरी उनसे बात हुई। शी गॉट अ कॉल ऑन 17th or 18th of May this 2020 and she didn't receive it. She messaged him, who's this? And then from his side he messaged Didi, it's me, I want to talk. And she called. बोले आप अपना नंबर क्यों चेंज कर रहे हो बार बार? This was less than 1 month before he died. नहीं रहता था, ऐसा मुझे पता चला. This is less than 1 month before. Yes sir, yes before sir. he died. अभी की बात है ये. And he was constantly changing his numbers. Exactly sir. तो that's the reason why he was changing his numbers, why he was doing that. Nobody knows that. But I am very sure, sir, there is someone out there who knows the truth. I am very sure there has to be somebody who knows why he was changing the number. हमारी इतनी मीडिया होती है, हम कहीं निकलते हैं, people click us, paparazzi होता है, ये होता है, वो होता है. So what used to happen in this whole 1 year, Sushant was not that visible. What he used to. He used to be everywhere, every party. You can see his smile everywhere. But somehow, एक कट ऑफ होते वो दिख रहा था कहीं ना कहीं, वॉज वेरी विजिबल, बहुत अच्छे से चीज पता चल रही थी कि समवेयर ही वॉज, मतलब कहीं उसकी फोटोज नहीं होती थी, देयर वाज सम एम्प्टीनेस, आई कुड फील दैट, कि शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या जो भी चीज थी। बट एज एन मैं भी आपकी तरह बाहर थी, आई वॉज एन आउटसाइडर, आई कुड नॉट रीच हिम, आई कुड नॉट आस्क दिस टू फैमिली, बट देयर वाज समथिंग।
So जिस सुशांत को मैं जानती हूँ, I remember when he used to be with me, he used to give 1 hour of Twitter chat, you know, every day. Okay, he used to chat with his fans every day, and I used to ask him, why do you do that? How does it matter? तो मुझे उसका सिर्फ एक ही आंसर होता था, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये लोग जो है, मेरे पास सिर्फ यही है, मेरे फैंस ही हैं जो मुझे बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई और नहीं है। मेरी फिल्म अगर कोई चलाएंगे तो मेरे फैंस चलाएंगे। आज फर्क पड़ता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ। मुझे अगर मैं कहीं गिर गया, मेरे को उठाने वाला कोई नहीं है, तो मुझे जानना है कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है सर। एंड दैट्स फेयर इनफ सर। एज अ आउटसाइडर, मैं भी आउटसाइडर हूँ। आज मुझे भी इनसिक्योरिटी है सर कि मुझे आज कल क्या होगा मेरे साथ, कल मैं कहीं जाती हूँ, कहीं मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुशांत ने अपने दम पर सब बनाया था सब, अपने दम पर वो लड़के ने अपना मार्क बनाया था। वो एक छोटे, मैं वापस ये रिपीट करना चाहती हूँ सर, ही केम फ्रॉम अ विलेज, और उसने अपना नाम बनाया सर। IIT स्टूडेंट इंजीनियर, उसके पास कुछ नहीं था, बट उसके पास दिमाग था, उसके पास अपना दिमाग था, वो यूज करता था। और आई एम अ काइंड ऑफ अ गर्ल जिसको अफेक्ट नहीं होती सर ये चीजें, कौन क्या बोलता है मेरे बारे में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सुशांत को पड़ता था सर। सुशांत वॉज वेरी सेंसिटिव, सुशांत वॉज वेरी इमोशनल अबाउट हिज करियर, अबाउट एवरीथिंग। उसको ये तक फर्क पड़ता था कि लोग मेरे और उसके रिश्ते के बारे में क्या बोल रहे हैं सर, उसको ये तक फर्क पड़ता था, लोग क्या लिख रहे हैं ये उसको फर्क पड़ता था सर। बिकॉज एक बंदा जो बाहर से है सर, आज वो अपने दम पर, मेहनत पर, मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी मेहनत पे वो लड़का ऊपर गया है सर। आज कैसे फर्क नहीं पड़ेगा उसको, कैसे उसको फर्क नहीं पड़ेगा? आज इतने ब्लाइंड्स उसके बारे में लिखे गए होंगे। आई एम वेरी श्योर सर, यहाँ मैं होती थी उसको संभालने के लिए सर, उसके पास कोई मैं थी, आई यूज्ड टू हैंडल हिम, आई यूज्ड टू टेल हिम इट्स ओके, you don't have to worry about you can't keep happy everyone, you can't do that. I used to tell him that, but जब वो निकला यहाँ से, बहुत चीजें बढ़ती गई सर। आज जो आप मुझे बता रहे सर, मुझे नहीं पता थी सुशांत के लिए कभी लिख कर आई थी फ्रैंकली, बट येस आई एम श्योर ऐसा होगा। पर सर अगर ये हुआ है तो उसको 1010% उसको अफेक्ट की ये चीजें, उसको होती थी अफेक्ट, उसको बहुत छोटी छोटी चीजें अफेक्ट होती थी। शायद आप बड़ा बोल दोगे तो उसको चल जाएगा, लेकिन ये चीजें जो उसकी इमेज पर आ जाए सर, क्योंकि उसके लिए सबसे वैल्यूएबल वही थी कि जो मैंने अपने इमेज बनाया है, मैंने अपने दम पर बनाया है। आज सर कोई मेरे ऊपर बोल दे, मैं इतने दम पर, अपने दम पर यहाँ तक खड़ी है, अपने दम पर हूँ जो हूँ सर, आज उस पर कोई उंगली उठा दे तो कैसे लगेगा सर? आपको कोई कुछ बोल दे सर, आज आप इतने बड़े लेवल पर है सर, आपको कैसा लगेगा? आई एम ऑल्सो लाइक यू, आई एम एन आउटसाइडर सर, आई एम ऑल्सो एन आउटसाइडर, आई वॉज नॉट देयर विद सुशांत, बिकॉज but I can tell you, I can be so sure about the one thing, Sushant was never a kind of a guy who will commit suicide, sir. I can give you a surety of that, because that Sushant I know, sir, who is like a baby, who is like a child, who has been a child. मैंने पहले भी कहा है, मैं वापस कहूंगी, जिसको छोटी छोटी चीजें करने में मजा आता था। He was never a money minded guy, never a money minded guy. रिलेशनशिप में होकर किसी के लिए कुछ करना अलग चीज है सर। 15 crores, दिस इज समथिंग, दो कंपनीज अपने नाम पर। आई एम ऑल्सो गेटिंग टू नो नाउ, आई एम ऑल्सो सीइंग इन द न्यूज, बट इट्स रियली सैड कि सुशांत ऐसा कर रहा था, किस वजह से कर रहा था। I think this is what we all want to know, sir. This is, I really want to know कि अगर सुशांत का इतना ट्रांजेक्शन, ये सब हो रहा था, तो सुशांत क्या सोच रहा था ये करने के लिए सर? क्योंकि सुशांत ऐसा है नहीं, सुशांत बिल्कुल भी उस टाइप का लड़का नहीं था कि यू नो, आई वांट टू टेल दिस दैट आई डोंट थिंक सो इट्स अ सुसाइड सर। आई डोंट बिलीव दिस थिंग आफ्टर ऑल दी, इसीलिए शायद मैं सर थोड़ा लेट आई हूँ, यू नो, नाउ आई एम टेकिंग अ स्टैंड, बिकॉज क्या होता है जब ये चीज हुई सर, पहले तो डाइजेस्ट नहीं हुई चीजें, बहुत चीजें हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रही चीजें, और शायद इसीलिए आज मैं आपके सामने हूँ। और आई एम टेलिंग यू सर, सुशांत वॉज नेवर अ काइंड ऑफ अ गाय who will ever commit suicide.